A very good morning to all students. Once again, we are coming to discuss a 2019 board questions of the class 12 business studies. And you know very well in the last videos we discussed few of the important questions related from the class 12 business studies. We already discussed the important case studies related to the business studies, as well as we discussed the effect of COVID-19 pandemic on the different sector of the economy and the effect of lockdown also. So in today's video, we revised the few of the important questions, and after that we will discuss the 2019 board question paper. Okay, so without creating any delay, let's we discuss the first question of today's video, that is in question number 8. So the question number 8 is, give the meaning of physical distribution as an element of marketing mix. And the second question as an internal choice is, what is mean by marketing management? So what is the meaning of physical distribution? You know very well, if we are talking about the element of marketing mix, so there are basically 4 element of marketing mix, that is in price mix, products mix, place mix and promotion mix. If you are talking about the product physical distribution, and it is in fourth and very important element of marketing mix, that is in place mix. So place or physical distribution means set of activities that make firms' products available to the target consumer. It consists of all the activities involved in transferring ownership and physical possession of the product to the consumer. यानी कि प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसमें कि हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं टू द टारगेट कंज्यूमर्स. इसमें हम सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टिल द प्लेस ऑफ द कंजप्शन, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से कैसे उसे कंजप्शन प्लेस तक पहुंचाया जाए. सेकेंड इज, व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट. So is it very easy? Marketing management is the art and science of choosing target market. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है जिसमें हम टारगेट मार्केट को चूज करते हैं, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, एंड जो कस्टमर हैं उनको गेट करते हैं, कीप करते हैं, ग्रो करते हैं थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट या साइंस है जिसमें हम टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं और अपने कस्टमर को बढ़ाते हैं ताकि हम सुपीरियर कस्टमर वैल्यू डिसाइड कर सकें, यानी मार्केट में कस्टमर हमें प्रायोरिटी दे ओवर द डिफिशिएंट मार्केटर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द सेक्शन बी, that is in JTM Limited launch Buddy Line and exercise book and comprehensive stationery brand name comprising of ball pens, gel pen and geometry boxes. After identifying the target market and understanding the needs and wants of the consumer of the market, all their products were a lot of good quality and eco-friendly but expensive. They wanted to distinguish their product from that of their competitors. They spent lot of efforts, time and money in creating the brand name, as they knew that without a brand name, they can only create awareness for the generic products and can never be sure of the sale of their product. The efforts paid off and the demand for the product started growing. The customer liked the brand and become habitual to it. JTM Limited ने एक अपना प्रोडक्ट बडी लाइन, एक एक्सरसाइज बुक लॉन्च की, जिसमें
कॉम्प्रहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम के कॉम्प्राइज थे, बॉल पेन थे, जेल पेन थे, ज्योमेट्री बॉक्स थे। और आफ्टर उन्होंने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर की नीड एंड वांट को समझा, और सारे प्रोडक्ट जो थे गुड क्वालिटी के थे, इको फ्रेंडली थे, लेकिन थोड़े महंगे थे। वो अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, टाइम खर्चा किया, मनी खर्चा, ताकि एक ब्रांड नेम बने, क्योंकि एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करा सकते। दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर द जेनरिक प्रोडक्ट एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी अगर ब्रांड नेम नहीं होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को का जो जेनरिक प्रोडक्ट सिर्फ अवेयरनेस करा सकते हैं, लेकिन उसका सेल नहीं बढ़ा सकते। और इस एफर्ट का रिजल्ट ये हुआ कि डिमांड बढ़ी प्रोडक्ट की, और कस्टमर ने उस ब्रांड को लाइक किया और उसके हैबिचुअल हो गए। दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस। उन्होंने हायर प्राइस पे ध्यान नहीं दिया, किसने? कस्टमर्स ने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स a status symbol to buy Bodyline brand because of its quality। कुछ समय बाद लोगों के मन में ये एक सैम्बल क्रिएट हो गया, एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि Bodyline का जो स्टेशनरी है वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो उसकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम। कंज्यूमर को उस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने में, अपने में क्या लगा? प्राइड महसूस। यानी ब्रांड इतना ज़्यादा फैल गया। इसमें पहला इंपॉर्टेंट बहुत ही क्लियर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज फॉलोड बाय द JTM लिमिटेड। इसमें सिर्फ कस्टमर के नीड एंड वांट्स पे ही ध्यान नहीं दिया गया, इसमें कस्टमर के नीड एंड वांट्स के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट उसने सेल करना स्टार्ट किया। यू कैन सी दैट गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो इको फ्रेंडली भी है, एक्सपेंसिव हैं लेकिन इको फ्रेंडली भी हैं। तो इन दिस पैराग्राफ द सोसाइटल मार्केटिंग फिलोसफीज वे फॉलोड बाय द JTM लिमिटेड। सेकेंड, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द टर्म स्पेसिफाइड इन दिस अबव। इसमें तो ब्रांडिंग का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे तो उसमें ब्रांडिंग वर्ड पे भी काफ़ी फोकस किया गया है कि ब्रांड नेम नहीं रहेगा तो हम सिर्फ अवेयरनेस ला सकते हैं, सेल नहीं इंक्रीज़ कर सकते। ब्रांड को लोगों को पसंद किया, लोग उस ब्रांड के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं, वो पे स्टेटस सिंबल बन गया है, कस्टमर्स को यूज़ करते तो प्राइड महसूस। तो ब्रांड का बहुत फ़ायदा है। ब्रांड का फ़ायदे कौन कौन से हैं? जैसे हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एडवर्टाइज करा सकते हैं, प्रोडक्ट को ईजिली डिस्प्ले करा सकते हैं, प्राइसिंग अलग अलग कर सकते हैं ब्रांड के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट question is question number 10. The question number 10 is, Meeta has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice cream are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk and same are available in a wide range of flavors and packs. She sets viable business objective and works with the same in mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing. यानी मीता एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस चलाती है बीकानेर में, जिसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर। उसका आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए क्योंकि उसने आइसक्रीम जो बनाई है वो फ्रेश मिल्क से बनाई है, और उस आइसक्रीम के कई सारे फ्लेवर्स हैं, कई सारे पैक्स हैं। कई तरह के बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद वर्क्स विद द सेम इन द माइंड टू इंश्योर कस्टमर विल कम बैक फॉर परचेजिंग। उसे पता था कि कस्टमर ज़रूर उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profits, she started cutting cost. This would sometimes lead to delay in delivery, and the ice cream was not reaching the market in time. Over a period of time, the demand for her ice cream declined, and because
of its competitor entered the market, she lost some of her market share to competitor. तो अच्छे दिन भी थे, बुरे दिन भी आ गए कि मीता ने अपनी कॉस्ट कम की, अच्छा बिजनेस चलाया, लेकिन डिलीवरी में डिले के कारण उसके प्रोडक्ट कई सारे मार्केट में टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, जिससे उस प्रोडक्ट यानी उसके आइसक्रीम का जो डिमांड थी वो कम हो गई। कई सारे कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ गए। सी लॉस सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू कॉम्पिटिटर, वो कुछ कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर से कुछ मार्केट भी हार गई। मार्केट हार मतलब उसका जो टारगेट मार्केट था वो कम हो गया। कुछ मार्केट पे उसके प्रोडक्ट सेल नहीं होते थे, किसी और के सेल होते थे। एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन सी गॉट बैक टू बैक order for supply 4000 ice cream pack of different flavors of a special occasion। यानी समर के सीज़न के बिगनिंग में ही उसे ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ, 4000 आइसक्रीम पैक्स, वो भी डिफरेंट फ्लेवर्स के। टू इंश्योर दैट द टास्क वर कंप्लीटेड एंड ऑर्डर डिलीवर इन टाइम, शी हायर्ड एडिशनल वर्कर, काम समय पे पूरा करने के लिए और डिलीवरी टाइम पे करने के लिए उसने एडिशनल वर्कर हायर की। thus able to produce and deliver the ice cream packs but a higher production cost। उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो किया, डिलीवर भी तो किया, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। while completing activities and finishing the given task achievement, Mila realized that she was ignoring one of the important aspect of the management। उसने बहुत बड़ा important aspect मैनेजमेंट का इग्नोर किया है। एंड आपको बताना है identify the aspect of management that has been ignored by Meeta and also explain the same with an example। आपको बताना है कि मीता ने कौन सा एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर किया है और also explain the same with the example, help of an example। आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। So according to me the very important term is efficiency and effectiveness। You know very well what is efficiency? Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost, and effectiveness means doing the right task, completing activities and achieving goals। यानी effectiveness का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने काम सही किया, काम को complete किया, गोल अचीव किया। एंड efficiency का मतलब होता है आप काम सही करने के साथ साथ मिनिमम कॉस्ट पे करो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, से अ कंपनी लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट इन ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट बट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दिस केस मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। वही समझाया उसने। इन द अबव सिचुएशन इफ द मैनेजर वॉज एबल टू प्रोडक्शन टारगेट बट एट अ हायर कॉस्ट ही वुड बीन इफेक्टिव बट नॉट इन एफिशिएंट। यानी उसमें आपने देखा होगा कि वो बंदा यानी इस पूरी कंपनी में एडिशनल लेबर को हायर किया गया आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि टाइम पे हो सके, टाइम पर डिलीवर हो सके। तो उसके लिए उसने इफ़िशिएंट रखा है, इफ़ेक्टिव रखा है, इफ़िशिएंट नहीं है। इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस होता है। यू आर द इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट आप तब होंगे जब आप काम करते हैं विद द लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इफेक्टिव, जैसे मैं इफेक्टिव कब हूँगा? मैं इफेक्टिव तब माना जाऊँगा जब मैं टाइम कंप्लीट करता हूँ, मैं काम कंप्लीट करता हूँ टाइम पे। इफिशिएंट कब माना जाऊँगा? जब मैं काम टाइम पे कंप्लीट करने के साथ साथ मिनिमम रिसोर्सेज पे कंप्लीट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज इन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। State the job in enrichment and employees participation and non-financial incentive and how they are motivate employee। You know very well, employees को motivate करने के लिए हम कई तरीके के non-financial incentive and financial incentive provide करते हैं। So job enrichment means that designing the job include greater variety of work content, required higher level of knowledge, give worker more autonomy and responsibility, and provide the opportunities
फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। यानी किसी वर्कर जो कि एग्जिस्टिंग काम करने में उसका मन नहीं है या वो ऑलरेडी उस काम को काफ़ी अच्छे से सीख चुका है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको चैलेंजिंग जॉब देते हैं या उसकी हायर लेवल की जॉब देते हैं, उसको मोर ऑटोनॉमी देते हैं, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो और अच्छे से काम कर सके। एंड एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि employees participation means giving more autonomy and power to the employees. It makes the feel jobs are important and his feeling makes them contribute positively to the use of their skill, talents and the job performance. Job enrichment का मतलब है कि उसे हम हायर लेवल का वर्क दें। जैसे वो मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है लेकिन उसे हम टॉप लेवल का कुछ काम दें तो उसे हम बोलेंगे जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब होता है मिडिल लेवल के ही काम करने के लिए जो उसे राइट नहीं मिले हैं उसे और सारे एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइड किए जाए। ओके, सो ये है जॉब एनरिचमेंट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के बीच में डिफरेंस। और इन्हें हम बेसिकली उन सारे एम्प्लॉयज़ जो हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपने लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, उन्हें मोरल हाई करने के लिए उन्हें इन तरह के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 which having a 3 marks. Explain the objective of financial planning. As you can see that explain the objective of financial planning and the internal choice के रूप में इसमें क्वेश्चन दिया what is the mean by financial management, state the primary objective of financial management. So if you are talking about the objective of financial planning, so you can see that to ensure availability of the fund whenever required, which involves estimation of funds required to the time at which these funds are to be made available and the source of these funds. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि फंड कितना अवेलेबल है, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत पड़े, विच इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ फंड, जिसमें ये ज़रूरत होती है हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फंड की एस्टिमेट करना, द टाइम एट विच दीज फंड आर टू बी मेड अवेलेबल एंड द सोर्सेज ऑफ दीज फंड। मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम फंड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, जब भी इसकी ज़रूरत हो तब हमारे पास फ़ंड अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें हमें कई तरह के फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और उस टाइम जिस टाइम हम, जैसे बेसिकली हम ये कहें पैसा तो है लेकिन हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो राइट टाइम पे राइट समय पे अगर वो फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, it is a very important objective of the financial planning to ensure availability of fund whenever required, which involves estimation of the fund required, the time at which these funds are to be made available, the source of these funds. Number second, to see that the firm does not raise resources unnecessarily. ये भी देखना कि फर्म ने रिसोर्सेज अननेसेसरी तो हायर नहीं करके रखे, मतलब एक्सेस फंड रेज नहीं होना चाहिए, जितने फंड की ज़रूरत है उतना ही फंड हमारे पास होना चाहिए। यानी कि बैड एंड इनएडुकेट फंडिंग नहीं होनी चाहिए, फर्म के पास उतनी फंड अवेलेबल। देखिए पहली चीज़, फंड हो राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाए, और फंड एडुकेट होना चाहिए, इनएडुकेट नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा हमने लोन ले लिया, बहुत सारा फंड अरेंज कर दिया, तो उससे भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, द फर्स्ट इज इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी ये इंश्योर करना कि हमारे पास प्रॉपर फंड अवेलेबल है। नंबर सेकेंड, फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, मतलब फर्म को रिसोर्सेज अननेसेसरी रेज नहीं करने चाहिए। द सेकेंड इज व्हाट इज मीन बाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू नो वेरी वेल, दैट इज एन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब यू नो वेरी वेल कंपनीज की एक तरह से एसेट्स होती हैं, उस एसेट्स को मैक्सिमाइज करना, इट इज़ अ प्राइमरी एम ऑफ द शेयर होल्डर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ सेकेंडरी थिंग, बिकॉज अगर कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा सो ऑटोमेटिक कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट मीन्स इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स and involves decision relating to procurement fund, investment of fund and distribution of earning to the owner. Means financial management एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें हम फ्लो ऑफ फंड्स को डिसाइड करते हैं
एंड डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी कहाँ से हमें पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, यानी कि जो हमें अर्निंग होगी, जो हमें प्रॉफिट होगा, उसे हमें कैसे ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Science is a systematized body of knowledge that explain certain general truth or the operation of general laws. In the light of this statement, describe management as a science. Yes, secondary में पूछा है, management is a complex activity that has three main dimensions. Explain these dimensions. यानी साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करता है जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ साइंस. आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है. तो ये तो यू नो वेरी वेल मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, बिकॉज यू नो वेरी वेल it is not a pure science, it is an exact science, because the few features of the science are not present in the management. So line is, science is a systemized body of knowledge that explains certain general truth or the operation of general laws. आंसर देखिए इसका, science is a systematized body of knowledge that explains general truth of or the operation of general laws. मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट साइंस है लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, इसे हम सोशल साइंस के रूप में क्राइटेरिया करते हैं. द रीजन इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज So, science is a systematic body of knowledge, yes, and management is also a systematic body of knowledge. Principle based on observation, you know very well, science की तरह अगर हम बात करें, the management principle are derived through observation, repeated experimentation. So this feature of science is present in management. यानी कि systemized body of knowledge तो management में भी आता है. और साइंटिफिक प्रिंसिपल या मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन में बेस्ड होते हैं. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल वैलिडिटी, सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस प्रोवाइड मैनेजर विद सर्टेनिटी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स that can be used in the different situation since they have to be modified according to the given situation. The application and use is not universal. So this feature of science is not fully present in the management. यानी कि दो important feature of science यानी systematic body of knowledge and principle based on observation and experimentation are present in the management, whereas a universal validity are not present in the management. Number second is management is a complex activity. लिखा है ना क्वेश्चन में, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ थ्री मेन डायमेंशन. मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें थ्री मेन डायमेंशन होते हैं. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि वो तीन डायमेंशन कौन कौन से हैं. यस, आई एम टोटली एग्री, मैनेजमेंट इज अ थ्री कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जिसके तीन मेन डायमेंशन है. सो द डायमेंशन आर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, what has to be done, management of people, who is to be done, management of operation, how is to be done. So management of work ये बताता है क्या करना है, people ये बताना है कौन करेगा, और operation बताना है कैसे करना है. So after completing the section B, let's we move to the section C. Section C is question number 14, which are based on the case studies. That is a Mahindra Agro Limited started a new venture for the distribution of harmful and chemical fertilizer free vegetables. They conducted a survey to find out consumer preference of such vegetable. They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. Mahindra Agro Limited ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल. यानी कि एक ऐसे वेजिटेबल्स उसने स्टार्ट किया, वेजिटेबल देना जिसमें हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जाता. उसने सर्वे कंडक्ट कराया और
इस तरह के वेजिटेबल्स के बारे में कस्टमर्स की प्रेफरेंस जाननी चाहिए। दे फाइंड कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वे कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल बिंग यूज्ड इन द ग्रोइंग द वेजिटेबल। उन्होंने देखा कि अधिकतर कंज्यूमर वेजिटेबल के साथ यही कंप्लेन लेकर बैठे हुए थे कि जो वेजिटेबल उनको मिलती है उसमें हार्मफुल केमिकल यूज़ किए जाते हैं। They found that 90% of the household were searching for its alternative. The company contacted a group of the agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetable by the farmer. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetable according to the new innovative method. उसने फार्मर्स को ट्रेन किया, फार्मर्स को बताया कि किस तरह से बिना केमिकल फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री वेजिटेबल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. And the expert also suggest soil management techniques through which farmer would be able to create an abundant and lasting harvest. आपको यहाँ बताना है identify and explain the two dimension of business environment highlighted in the above paragraph. So देखिए इस यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि उसने सर्वे कंडक्ट कराया, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात की और हार्मफुल केमिकल को रिप्लेस किया विद द टेक्नोलॉजी. तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो पक्का है. और दूसरा यहाँ पे सोसाइटी के व्यूज़ को देखा गया, कस्टमर के व्यूज़ को देखा गया. सो यहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट भी आएगा. सो इस पूरे पैराग्राफ में दे आर बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द मैनेजमेंट और द टू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज एन social environment and technological environment. So what is social environment? Social environment includes social forces like custom and tradition, value, social trends and society expectation from the business. यानी सोशल डायमेंशन या सोशल इन्वायरमेंट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? सोशल फोर्सेस लाइक उनके क्या कस्टम है, ट्रेडिशंस है, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं. तो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल डायमेंशन. टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में अगर बात करें, सो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन which provide new ways of producing goods and services and the new method and techniques of the operating business. So technological dimension में क्या आता है, बिजनेस में हम साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, नए नए तरीक़ों से की बात करते हैं जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं और न्यू मेथड्स पे डिस्कशन करते हैं, टेक्निक्स पे डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March in which the top managerial personnel formulate plan for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked using scientific calculation. Detailed plans are prepared after discussion with professionals, experts. Preliminary investigation are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, so it is mainly done by the top management. Usually rest of the members just implement the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plan, nor they permitted to enact their own. The top management ensure that the expenses incurred in the formulating the plans justify the benefits derived from them. State any two limitation and two features of the planning discussed above. So you can see that कि मेगा लिमिटेड ने एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हर साल मार्च में, जिसमें टॉप मैनेजर पर्सनल ने फॉर्मुलेट किया प्लान नेक्स्ट ईयर के लिए, एनालाइज किया, प्रिडिक्ट किया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी उसने चीज़ें डिस्कशन की प्रोफेशनल्स में. तो इसमें क्वेश्चन में ये सिंपली पूछ रहा है कि इसमें बताइए दो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और टू फीचर ऑफ द प्लानिंग क्या है. तो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन द टू लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. ठीक, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है और प्लानिंग बहुत ज़्यादा पैसा लेती है. ये इसमें क्लियरली लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में. ओके, क्योंकि लिखिए द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर दैट एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मुलेटिंग प्लान जस्टिफाई द बेनिफिट डेराइव फ्रॉम दैट. और अगर फीचर्स ऑफ प्लान की बात करें तो फीचर प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस
ये सब फीचर्स इस पूरे पैराग्राफ में यू कैन सी दैट. ओके, so these are the important question number 15, and I hope today we cleared all the questions very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding today's videos, today's topic, please ask me in the offline classes as well as in the WhatsApp group. And it is very important for you for your upcoming examination which will be held in May. Please revise each and every topic of the chapter before solving the case studies. Case study solve करने से पहले आपको उस chapter के important points को revise करना ज़रूरी है. As well as आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि how we will justify with your answer. जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो वो आंसर जो होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए. वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करे कि जो क्वेश्चन गिवन किया गया. ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.